हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। आज हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं अबाउट द सब टॉपिक इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच इज गोइंग टू डील विद electromagnetic wave spectrum. So let's have a clear understanding that what exactly the electromagnetic wave spectrum is there and how it is going to be useful for us. किसी भी आर्टिकल का हमारी लाइफ स्पैन पे क्या असर पड़ने वाला है, या हमारी डेली एक्टिविटीज पे क्या असर पड़ता है, या हमारे सर्वाइवल पे क्या असर पड़ता है, तो अंडरस्टैंड करते हैं दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और अंडरस्टैंड करना क्या है उसमें, कि स्पेक्ट्रम जो है उसमें बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, लाइक एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट। सबकी वेवलेंथ रेंज क्या है, फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, एंड अकॉर्डिंगली उनको हम कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज करते हैं, नेचुरली एंड आर्टिफिशियली। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. So what is electromagnetic spectrum? It is basically a range of the frequencies and the wavelength. And the frequency range is somewhere between 1 hertz to 10 power 25 hertz. So 10 power 25 hertz जो frequency है, अगर हम Planck's law को use करते हैं, that is E is supposed to be equal to H into F. So we can understand that if the frequency is going to be so high, that means it means an energized radiation. So the 10 power 25 hertz is a higher frequency. So अगर हम 10 power 25 hertz को एक higher frequency end बोल रहे हैं, so it is going to be a lower wavelength end. So it's a higher frequency, but it will have a very low wavelength over here. So it's a low wavelength, right? So automatically अगर हम range of frequency बताते हैं, तो इसका मतलब indirectly हम range of wavelength भी बता रहे हैं. So lower wavelength end is known as a higher frequency end, जहाँ पे energy भी ज़्यादा होगी. And inverse अगर हम बात करें on the lower frequency end, तो वहाँ पे wavelength ज़्यादा होगी और वहाँ पे energy जो है वो correspondingly कम होगी. सो जनरल अगर हम बात करते हैं, तो ईएम वेव्स जो हैं, अगर वो वैक्यूम में ट्रैवल कर रही हैं, तो स्पीड सेम होगी, है ना. सी स्पीड इज गोइंग टू बी द सेम, दैट इज अ सी 3 into 10 power 8. बट देन द डिफरेंट पोर्शंस ऑफ इट, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट have different frequency and a different wavelength. To understood है, that can be guided by the expression that c is supposed to be equal to f into lambda. मतलब c तो constant है, but depending upon the lower frequency we can have a higher wavelength and vice versa. So let's understand which portions of the spectrum had which kind of the frequency range and the wavelength range, और कौन सा lower end of the spectrum पर है, कौन सा higher end of the spectrum पर है, कौन सा बीच में है. Let's understand that. So just have a wide range idea. तो सबसे पहले अगर हम lower end of the spectrum की बात करते हैं, so we talk about and we begin with the gamma rays. Gamma rays जो होती हैं, they are also known as highly penetrating part of the EM radiation. So they have a very high penetration power. अगर आप thick sheets of आयरन भी लगा लोगे, तो उसके थ्रू भी जो गामा रेज है वो पेनिट्रेट करके पास कर जाती हैं. सो दे हैव अ वेरी हाई पेनिट्रेशन पावर. इसका मतलब उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, और एनर्जी आती है एच इंटू एफ से. सो यू कैन सी द फ्रीक्वेंसी इज ऑन द वेरी हाई साइड, because of which the energy of this radiation is very high. So of course the wavelength hai, that's on the smaller side, that is around the picometer, less than a picometer is going to be the wavelength for the gamma rays. Next in the spectrum comes as a X-rays. So X-rays भी on the lower side ही माना जाता है, but it has a comparatively lower energy, क्योंकि उसकी frequency range जो है वो 10 power 17 से 10 power 20 है. Still it is under a high energy radiation. एक्सरेज को भी दो पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है, एज अ सॉफ्ट एक्सरेज एंड अ हार्ड एक्सरेज. हार्ड एक्सरेज का मतलब होता है जहाँ पे एनर्जी लेवल थोड़े ज़्यादा है, मतलब जो वेवलेंथ होगी वो कंपैरेटिवली कम होगी, मतलब नैनोमीटर के आसपास होगी. और अगर हम सॉफ्ट एक्सरेज की बात करेंगे, तो एनर्जी लेवल्स उसके थोड़े कम होंगे, मतलब वेवलेंथ जो है वो उसकी ज़्यादा होगी. सो वो पिकोमीटर के अराउंड होगी. अगर आप ऑन एन एवरेज स्केल अपने दिमाग में रखना चाहते हैं, सो द वेवलेंथ अराउंड एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर से एंगस्ट्रॉम, मतलब एंगस्ट्रॉम रेंज की जो वेवलेंथ्स होंगी, they are going to be of the X-rays. Now we talk about the next in the spectrum, that is UV, as ultraviolet. So जो ओजोन लेयर की डिस्कशन जब आता है, तो अल्ट्रावायलेट रेज का जिक्र आता है. इनफैक्ट हमें ये भी पता होना चाहिए कि अल्ट्रावायलेट के नीचे वाली जो रेडिएशंस होती हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर रेडिली एब्जॉर्ब भी कर पाती है. दिस इज स्लाइटली लेस एनर्जेटिक इन कंपैरिजन विद एक्स रेज. जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, दैट इज 10 पर 15 टू 10 पर 17. नाउ इट्स अप टू यू कि आप
दोनों में से एक रेंज को आप अपने दिमाग में फिट ऑन कर सकते हो, एंड देन यूजिंग द सी इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा आप दूसरी रेंज को कैलकुलेट कर सकते हो। लेट्स फॉर एग्जांपल आपको वेवलेंथ पता है, तो सी की वैल्यू तो अपने को पता है 3 × 10⁸, सो यू कैन रेडिली डिराइव इन द वैल्यू फॉर द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम देयर, राइट। सो वॉचिंग ओवर हेयर, तो जो रेंज है यहाँ पे वो आपकी नैनोमीटर के अंदर ही आ जाती है। सो नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर का मतलब हो गया 4 × 10⁻⁷। तो इस रेंज के अंदर आपकी यूवी लाई करती है। यूवी इज सपोज टू बी द डाउन साइड पार्ट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है दैट इज अराउंड 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम, मतलब ये माइक्रोमीटर से हल्का सा ऊपर रहता है। तो 10⁻⁷, 10⁻⁶ से 10⁻⁷ की रेंज ऑफ वेवलेंथ में है। And frequency is around 10⁻14 to 10⁻15 hertz for the visible, मतलब विबग्योर का जो पूरा स्पेक्ट्रम है। Violet is on the lower side of the wavelength, red is on the higher side of the wavelength, and the frequency is going to be reverse. रेड के बियॉन्ड जो आपका स्पेक्ट्रम है दैट इज इंफ्रारेड, काफी वाइड स्पेक्ट्रम है, तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा जाता है, एज ए नियर इंफ्रारेड एंड अ फार इंफ्रारेड, राइट। अकॉर्डिंगली जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीजिंग मोड पर है, राइट। सो नाउ इट इज गेटिंग इनटू द माइक्रोमीटर, राइट, एंड इन द हायर वैल्यूज ऑफ द माइक्रोमीटर। सो जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जा रही है, एंड दैट्स कमिंग अराउंड 10⁻13 नाउ। And as we enter into the region around a millimeter value, millimeter से कम वैल्यू मतलब माइक्रोमीटर, फ्यू माइक्रोमीटर से लेके मिलीमीटर तक की जो वैल्यूज हैं, दे आर अंडर द स्पेक्ट्रम नोन एज अ माइक्रोवेव्स। एंड फाइनली वी टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन वेव्स एज अ रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स जो होती है उनकी जो वेवलेंथ होती है वो काफ़ी, you can see that we have a very high wavelength over here, वो 1 millimeter है। it can be also extended to the centimeters and meters to kilometer, तो उसको हम लॉन्ग रेडियो वेव्स पे ले जाएंगे। तो जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो ऑन द लोअर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे आ जाती है, right? So the frequency is maximum for the case of the gamma rays and minimum for the case of the long radio waves, and vice versa if we are talking about a wavelength, so gamma rays के लिए जो wavelength है वो least आएगी, और radio waves वो भी long radio waves के लिए जो wavelength है वो maximum आएगी। This gives us a brief idea about how does the whole electromagnetic spectrum frequencies are related to, and this is a chart which is exactly giving you the order of these particular values. सो ऑर्डर से आप ध्यान रख सकते हो, अगर हम वेवलेंथ के ऑर्डर से ध्यान रखना चाहते हैं, सो यू कैन सी रफली दैट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स रे, सो उसका जो मिडिल पार्ट है वो एंगस्ट्रॉम को अराउंड है। गामा रेज में ये वैल्यू आपकी पीको मीटर पर है, दैट इज अराउंड पीको मीटर वैल्यू। एंड इफ आई कम डाउन टू द आई आर वैल्यूज, तो आप देख सकते हैं कि जो आई आर वैल्यूज हैं वो आपकी माइक्रोमीटर्स के अराउंड है। सो और 10⁻⁻6 से लेके 10⁻⁷ के बीच में यू कैन सी अप द विजिबल पार्ट ओवर हेयर। माइक्रोवेव जो है वो आपका मिलीमीटर के पहले तक एक्सटेंडेबल है, एंड बियॉन्ड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द रेडियो वेव्स विच कैन एक्सटेंड टू लॉन्ग किलोमीटर्स ऑल्सो। और विजिबल स्पेक्ट्रम को अगर हम ध्यान से देखें तो मेंशन आउट है 400 से 700, 3800 से 7600 के अराउंड, 7400 7500 के अराउंड इट इज गोइंग टू बी हैविंग अ वैल्यू 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम। So that's how roughly you can keep this whole range in your mind. Now, what are the uses of every part? आप दो दो uses को अपने दिमाग में रख सकते हैं. This is how the questions are basically being asked in the previous examinations. तो कुछ तो uses ऐसे हैं जो कि हमें याद नहीं रखने पड़ते, मतलब naturally हमारे दिमाग में आ जाते हैं. For rest, you can just keep couple of uses in your mind. जैसे रेडियो वेव्स की बात करें तो कम्युनिकेशन वेव्स हैं, तो टीवी कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन एंड एस्ट्रोनॉमिकल आइडियाज़, वहाँ पे रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं। माइक्रोवेव्स आप अपने घर में माइक्रोवेव ओवन को यूज़ करते हैं तो कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ ऑल्सो यूज इन रडार कम्युनिकेशंस। If I talk about the infrared waves, you can see that it's used in the physiotherapy also. Infrared rays को मतलब जहाँ भी हीटिंग इफेक्ट्स होते हैं वहाँ पे इनको यूज़ करा जाता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझने के लिए यूज़ करा जाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं अपने रिमोट्स को यूज़ करते हैं। समटाइम्स यू ऑल्सो यूज़ योर फोन एज एन ऑल्टरनेट रिमोट, स्मार्टफोन को, लेकिन आपके स्मार्टफोन में आई आर एनेबल्ड होना चाहिए। अगर आपके स्मार्टफोन में आई आर एनेबल्ड नहीं है तो फिर आप उसको एक रिमोट कंट्रोल की तरह यूज़ नहीं कर पाते, फिर आपको वाईफाई यूज़ करना पड़ता है। सो द आई आर इज यूज इन द रिमोट कंट्रोल ऑफ द टीवी एंड वीसीआर।
यूवी रेडिएशन जो होती है वो आपके घर में कोई चोर आ जाता है तो अलार्म बजाने के लिए यूज़ होते हैं। बर्गलर अलार्म्स में यूवी रेज यूज़ करी जाती हैं, और आप अपने आरओ में यूज़ करते हैं टू किल द जर्म्स ओवर देयर। सो यूवी एनेबल्ड आते हैं, आप पढ़ सकते हैं मैनुअल्स को फॉर बिफोर इंस्टॉलिंग द आरओ। And then we talk about the X-rays, which are which were introduced to us by Roentgen, and they were of very low wavelength. तो कहाँ यूज़ करते हैं, आप हॉस्पिटल अगर जाएंगे तो आपका अगर कुछ इंटरनल स्कैन करना है, सो यूज़ देम। सो दे आर यूज इन द मेडिकल डायग्नोसिस। बड़ी इंपॉर्टेंट बिहेवियर होता है एक्सरेज का। एक्सरेज जो होती है वो हमारी टिश्यूज़ के थ्रू तो पास कर जाती हैं, लेकिन जब वो हमारी बोन्स के पास आती हैं तो बोन्स पे वो शैडो कास्ट करती हैं, और उसी वजह से हमारे एक्सरे स्कैन जो है वो पॉसिबल हो पाते हैं। दे कैन बी ऑल्सो यूज फॉर फाइंडिंग द क्रैक्स इन द मटीरियल्स। सो इवन लाइक एक्सपेंसिव मटीरियल्स होते हैं तो जिनको आप ब्रेक करके देख नहीं सकते कि कोई इंटरनल डैमेज तो नहीं हुआ है, सो विद द हेल्प ऑफ द एक्सरेज यू कैन एक्चुअली डू सो। एंड देन इन food packaging industry we are using the gamma rays, and in the radiotherapies also. So these are a couple of uses of the parts of the spectrum which you might be interested in remembering, because the questions are centered around them. तो देखते हैं कि और किस तरीके का क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है which clearly explains to us that state the part of the electromagnetic spectrum to which each belongs. So let's try to answer each one of it. So let's look at the A part. एक एक करके स्टडी करते हैं. So it says 21 centimeter. So 21 centimeter is going to be more than a millimeter. So if it is more than a millimeter, that means it enters into the region of the radio wave. So this is definitely in the region of the radio waves. लेकिन अगर हम वैल्यूज को देखें, सो दिस आर इन सेंटीमीटर, सो दे आर अ पार्ट ऑफ द शॉर्ट वेव्स। सो दे आर इन द शॉर्ट वेव्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, राइट। सेकंड बी पार्ट को चेक करते हैं, दैट्स 1057 मेगाहर्ट्ज। मैंने आपको एक तरीका बताया कि या तो आप वेवलेंथ को अपने दिमाग में रख लो या तो फ्रीक्वेंसी को, है ना। दोनों अगर याद नहीं रख पा रहे हो तो अगर आपको जैसे क्वेश्चन आ जाता है, अब जैसे फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन हो गया, सो तुरंत आप इसको वेवलेंथ रेंज में कन्वर्ट करके, क्योंकि आपको वेवलेंथ रेंज दिमाग में याद है, तो आप इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो लेट्स से इफ आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट अ वेवलेंथ फ्रॉम एयर, दैट शुड बी इक्वल टू सी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी गिवन है 1057 मेगा। मेगा का मतलब हो जाएगा 10⁻6। सो दिस रफली वर्क्स अपॉन एज इक्वल टू 3 upon 1.06, and this is 10 power 8, and upon that is 10 power 9. So this works upon a 10 power minus 9, 10 power minus 1 हो जाएगा, 10 power minus 9 ऊपर लेके जाके। So that is 3 upon 1.06, so around 2.9 into 10 power minus 1, मतलब 0.29 मीटर या 29 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगी वैल्यू। So once again this particular value is coming closer to this 21 centimeter, जैसा A part में given है। So question है, आपने देखा कि घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा, बेसिकली A और B का आंसर सेम है। So the B answer is once again the same as the radio waves and the short waves, because the wavelength is coming around 21 centimeter. Now look at the C part over here. It talks about the temperature now. So this is how the question is going to trying to judge your ability of checking the spectrum part. अब यहाँ पर मैं एक आर्टिकल जो होता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का, उसको यूज़ कर सकता हूँ। वेयर अ वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो कि एक +1 के आर्टिकल में आता है, इन द आर्टिकल ऑफ द रेडिएशन, दैट इज अ मीन वेवलेंथ इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट रहता है, दैट्स इक्वल टू द वेन्स कांस्टेंट। जो वेन्स कांस्टेंट की वैल्यू है दैट इज अराउंड 0.289, मतलब 0.29 ले लेते हैं। सो लेट्स टेक दिस वैल्यू एज अराउंड 0.29। तो यहाँ से क्या करते हैं, हम वेवलेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। सो दैट मीन वेवलेंथ विल कम आउट टू बी एज 0.29 अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दैट इज 2.7 केल्विन ओवर हियर। So 2.7 Kelvin over here. So this is coming as 2.9 upon 2.7. तो वो तो अराउंड 1 हो जाएगा, एंड 1 से थोड़ा सा ऊपर ही होगा। सो 1 पॉइंट समथिंग, लेट्स से 1.1, एंड into 10 power minus 1. So into 10 power minus 1. So that becomes 0.11 meter over here. So this becomes the value over here. So 0.11, matlab it is 0.11. So it is getting into the range of
of the range of, if you're talking about this range, so 0.11 is getting into the microwave range, right? In the microwave range. So this part of the spectrum gets into the microwave part of the spectrum. सो एक तरीके से क्वेश्चन जो है वो मेरे को लगता है कि लोअर पार्ट पे लेकर आ रहा है। पहले वो रेडियो वेव्स पे ले गया, मेरे को माइक्रोवेव पार्ट पे ले आया है। एंड नाउ कम्स अ डी पार्ट ऑफ इट विच डील्स विद द 58905896 एंगस्ट्रॉम। दिस पार्ट विच इज अ D1 D2 लाइंस ऑफ द सोडियम विच आर येलोइश इन कलर, दिस correspond to the येलो कलर। वैसे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं 3800 से 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच की वैल्यूज है, which means which spectrum I'm going to talk about. There's a visible part of the spectrum over here. And that's a visible spectrum. So let's take the next part where it is talking about now energy. So देखा आपने कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपको मैनीफोल्ड तरीके से टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, through the wavelength, through the frequency, through the temperature, and through the energy. So energy can be written as either H into F. तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी रेंजेस पता है तो आप इस एक्सप्रेशन को यूज करें। अगर आपको फ्रीक्वेंसी रेंज नहीं पता है और आपने वेवलेंथ रेंज को याद करा हुआ है तो आप एच सी बाय लैम्डा को यूज करें। तो दोनों से आपको या तो फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी या तो वेवलेंथ मिल जाएगी। मुझको वेवलेंथ से अभी कंपैरेटिवली इजी लग रहा है। सो दैट वेवलेंथ इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। तो इसका एक एक्सप्रेशन है हमारे पास में कि वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में आ जाती है अगर हम जो एनर्जी है यहाँ पे वो, सॉरी क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये नीचे एनर्जी आ जाएगी ना। सो दिस इज गोइंग टू बी द एनर्जी। अगर हम एनर्जी को यहाँ पे एज ईवी में सब्स्टिट्यूट कर दें और ऊपर वैल्यू आ जाती है 12375। सो दैट्स एन एक्सप्रेशन, नाइस एक्सप्रेशन। नहीं तो कोई नहीं, अगर आपको ये एक्सप्रेशन याद भी नहीं है तो कोई बात नहीं। अब एच की वैल्यू पता है आपको 6.62 इंटू 10⁻34, सी की वैल्यू पता है 3 इंटू 10⁸, और एनर्जी की जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे प्लेस करके आप अपना लैम्डा फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज जस्ट हैव गिवन एज अ शॉर्ट एक्सप्रेशन फॉर अ क्विक कैलकुलेशन। देख लेते हैं ये लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में कब आएगी। अगर ये वैल्यू है 12375 डिवाइडेड बाय ये 14.4 के ई वी गिवन है। के ई वी का मतलब होता है 10⁻³ EV, मतलब that becomes 14400। Now if we look at this particular value, this is close to 1 angstrom, close to that particular value, मतलब 0.9 के आसपास आ जाएगी, 0.8 के आसपास। That means the order of the wavelength comes out to be angstrom, and if the order is around the angstrom, हमें पता है कि हम किस part of the spectrum की बात कर रहे हैं, that is supposed to be the X-rays. So it deals with the X-rays part of the spectrum. So cool way of asking the question, different aspects से आपको test करा, one of the very nice questions which is plotted in the NCERT. Now look at much easier questions. It says which are the following electromagnetic radiations have the smallest wavelength. So we know that idea. Know that idea. The lower end of the spectrum, that is going to be the gamma rays. Gamma rays मतलब कितनी 10⁻12 के भी नीचे है ना, उसके भी नीचे, पिकोमीटर के भी नीचे। एक्स रेज मतलब एंगस्ट्रॉम, तो आइडिया होना चाहिए। अल्ट्रा वायलेट मतलब दैट इज लोअर देन द 3800 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो मतलब आप 10⁻7 के आसपास की बात करें। माइक्रोवेव्स मतलब ये मिलीमीटर, अप टू द मिलीमीटर, मिलीमीटर से कम, है ना। मिलीमीटर के बियॉन्ड क्या आ जाती है आपकी, रेडियो वेव्स आ जाती है। उसके अंदर भी अगर किलोमीटर में है तो लॉन्ग रेडियो वेव्स आ जाती है। सो दिस इज हाउ यू कैन कीप द स्पेक्ट्रम रेंजेस इन योर माइंड। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज टेस्टिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी। शायद उसको पता चल गया क्वेश्चन को कि मैंने वेवलेंथ याद करी है। सो इट इज बेसिकली ट्राइंग टू आस्क मी अबाउट द फ्रीक्वेंसीज। नॉन चैलेंज, है ना, मैं आराम से कर सकता हूँ। किस तरीके से कि मैं सबसे पहले देखूंगा कि जो सबसे कम वेवलेंथ वाली है वो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी की होगी। सबसे कम वेवलेंथ वाली जो है वो किसकी होती है, दैट इज ऑफ द गामा। तो गामा सबसे हाई फ्रीक्वेंसी का होगा। पर इसने तो मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है, तो इसका मतलब मुझे सबसे पहले कम फ्रीक्वेंसी वाला देखना होगा। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी इसकी होगी जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ तो किसकी होती है, लॉन्ग रेडियो वेव्स की। यहाँ पे सिर्फ रेडियो वेव्स गिवन है, तो इसका मतलब जो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम होगी, क्योंकि वहाँ पे वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद में हम मूव करेंगे टुवर्ड्स अ माइक्रोवेव्स, क्योंकि अगर मैं अपने दिमाग में स्पेक्ट्रम को अगर रखता हूँ तो मैं कैसे स्केच करता हूँ, मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ आपको। कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ विजिबल, है ना, विबग्योर, और फिर उसके लेफ्ट, वॉयलेट के लेफ्ट मतलब यूवी हो गया, और विबग्योर के आर के राइट में क्या हो गया, आई आर हो गया। आई आर के बाद मैंने गर्मी गर्मी मतलब हीटिंग इफेक्ट्स आ जाते हैं,
वो खाना वाना बनाने में काम आता है. सो आई एम यूजिंग द माइक्रोवेव्स ओवर हियर. एंड देन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन. तो फिर मेरे पास यहाँ पे रेडियो वेव्स आ जाती हैं, द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ इट. और जब मैं यूवी के पीछे चला जाता हूँ तो मेरे को फिर वहाँ पे एक्स रेज मिलनी शुरू हो जाती हैं, जहाँ पे मेडिकल स्कैनिंग्स वगैरह चाहिए होती हैं, और रेडियोथेरेपी वगैरह में यहाँ पे गामा रेज आ जाती हैं. सो दिस इज हाउ द स्पेक्ट्रम इज देयर. सो मेंटली मुझे पता है कि this is the direction of the wavelength increasing, and this is the direction of the frequency increasing. So accordingly I can now just increasing ability पे मैं inequality बना सकता हूँ. So radio waves, and then you can see that we have the microwave, and then we can have the infrared radiation, and then I can have the visible part, and then I will have the UV part, and then I will have the X-rays part, and finally I will have the frequency for the gamma rays. So that's an easy way to answer this particular question. Now, see, a very interesting article which is known as greenhouse effect. Now, what is a greenhouse effect? It says हमारे पास भगवान ने एक सूरज दिया है, सन दिया है, तो सन से हमें सोलर रेडिएशन आती है. अब वो जो सोलर रेडिएशन हमारे पास आती है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे पहले पहुंचती है. सरफेस पे पहुंचने से पहले पहले एटमॉस्फेयर में पहुंचती है. तो कुछ जो है वो बैक इनटू स्पेस चली जाती है, जो कि क्या पता हमारे लिए हार्मफुल होती हो, लेकिन वो पहले से ही बाहर चली जाती है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. तो ओजोन लेयर जो होती है वो हमें हेल्प आउट करती है इन रिफ्लेक्टिंग इट बैक. नहीं तो हमारे में कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं. वी कैन हैव सम रियली बैड इफेक्ट्स ऑन अवर हेल्थ बिकॉज ऑफ द यूवी रेज. नाउ द रेस्ट जो एनर्जी होती है वो हमारे सरफेस पे पहुंचती है. तो सरफेस से वो पहुंचती है तो सरफेस पे हमारे जो इतना सारा पानी है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. लैंड होती है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, जिससे क्या होता है लैंड का भी और जो सी वाटर है उसका भी टेम्परेचर जो है वो क्या करता है, राइज करता है. अब क्या होता है कि जो सरफेस है उसका टेम्परेचर अब राइज कर गया, मतलब उसके पास एनर्जी एब्जॉर्ब होगी. नाउ इट कॉजेज अ री एमिटेंस, है ना. अब वो जैसे किरचॉफ लॉ हम पढ़ते हैं, तो इट एक्सप्लेन्स टू अस अबाउट द रिलेशन बिटवीन द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड द एमिशन ऑफ द एनर्जी. सो हीट जो होती है वो क्या करती है, रेडिएट करती है टूवर्ड्स द अर्थ स्पेस. लेकिन फिर से क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो उनमें से कुछ को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है. तो सारी हीट जो है वो जा नहीं पाती है थैंक्स टू द एटमॉस्फेयर. उसकी वजह से कुछ जो वेवलेंथ्स हैं वो वापस से हमारे लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो अर्थ के अराउंड एक ब्लैंकेट सा बन जाता है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर सस्टेनेबल फॉर लाइफ हो जाता है. एंड दिस आइडिया, जिस तरीके से ये जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप होके रह जाती हैं, इस आइडिया को ग्रीन हाउस इफेक्ट बोला जाता है. नाउ हम जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे हम रॉ मटेरियल्स फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, तो ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में वो काफ़ी सारी रिलीज हो जाती हैं. तो वी ऑफन कीप ऑन टॉकिंग अबाउट द कार्बन फुटप्रिंट्स, एंड वी ऑफन कीप ऑन टॉकिंग अबाउट द डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर एंड ऑल. सो इससे अर्थ का टेम्परेचर और ज़्यादा राइज हो जाएगा, और ऐसा होने की वजह से there is going to be the melting of the glaciers, and the average level of the water is going to rise. So climatic changes आ जाएंगे. अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, क्योंकि सारा बिहेवियर अर्थ के एटमॉस्फेयर का है, सो ये टिपिकल रेंजेस हैं, आप यहाँ पे स्टडी ऑन कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द ट्रोपोस्फियर टू स्ट्रेटोस्फियर टू मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. सो इन द डायग्राम यू कैन सी दैट द वेरियस रेंजेस जहाँ पे जो भी एक्शन है वो आपको दिख रहा है. तो आपको दिख सकता है कि मीटियोर्स जो है वो मीजोस्फियर तक आ पाते हैं, एंड प्लेन्स एंड ऑल आर इन द रीजन ऑफ द ट्रोपोस्फियर टू स्ट्रेटोस्फियर. सैटेलाइट एक्शन जो है बिल्कुल एक्सोस्फियर में बहुत ऊपर होती है. Now, if we talk about a specific layer in which we have a high interest, that is known as the ionosphere layer. Ionosphere layer में ions होते हैं, और ions की हर height पे different ionic density है, thanks to the cosmic rays which enters into the Earth's atmosphere, which causes a ionization of the molecules over there, जिसकी वजह से different height पे different ionic density बनती है, जहाँ से हमारा जो रेडियो कम्युनिकेशन सिग्नल्स है वो रिफ्लेक्ट हो पाते हैं, और हम फार एंड कम्युनिकेशन अक्रॉस द सरफेस ऑफ द अर्थ कर पाते हैं. इमेजिन
soccer league in the Europe is able to be telecasted live in the India. This is all possible via the communication skills. Now understand कि जो डेंसिटी रीजन्स हैं वो आयोनोस्फेरिक लेयर्स में डिफरेंट है, तो हो सकता है कि कोई सिग्नल किसी डेप्थ से वापस रिफ्लेक्ट होके आए और कोई और सिग्नल किसी और डेप्थ से रिफ्लेक्ट होके आए. यू कैन सी दैट द रिफ्लेक्शंस आर देयर बट दे आर फ्रॉम द डिफरेंट डेप्थ्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. And so we identify the different layers of the ionosphere by the names A, B, C, D, E, F1 and F2 layers. और उससे हम बता सकते हैं कि कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज किस पर्टिकुलर डेप्थ से रिफ्लेक्ट होगी. Now let's understand this particular question. The first part of it, it says long distance radio broadcasts use short wave bands. So understood है क्योंकि wavelength की value जो है यहाँ पे comparatively कम है. क्या है wavelength की value यहाँ पे comparatively कम है. So because of which the it can travel towards a larger distance. Short wave bands का मतलब है that we are dealing around the wavelengths of greater than a millimeter, है ना, greater than a millimeter but not of the tune of the kilometers and all. So एनर्जी की वैल्यू सस्टेनेबल होगी और वो लॉन्ग डिस्टेंस पे जा सकती है. द बी पार्ट, इट सेज इट इज नेसेसरी टू यूज द सैटेलाइट्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टीवी ट्रांसमिशन. व्हाई? क्योंकि जो हम बात करेंगे फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस टीवी ट्रांसमिशन, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द हाई फ्रीक्वेंसीज. सो जो हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं दे आर एक्चुअली एबल टू बी पासिंग थ्रू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. और जब ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन आर एबल टू बी पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर तो इसका मतलब उनको रिफ्लेक्ट आउट करने के लिए, जैसे अभी हमने पीछे देखा कि हमें रिफ्लेक्शन चाहिए, तो जो रिफ्लेक्शन है वो सिर्फ सैटेलाइट से पॉसिबल हो पाती है. एंड देयरफॉर वी रिक्वायर द सैटेलाइट्स फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस टीवी ट्रांसमिशंस. राइट, अंडरस्टूड है बात. नाउ सी पार्ट, ऑप्टिकल एंड द रेडियो टेलीस्कोप आर बिल्ड ऑन द ग्राउंड but the X-ray astronomy is possible only from the satellite. So we can understand once again the same thing कि क्या हो रहा है कि अगर हम बात करें for the case of the X-ray astronomy तो high frequency की बात हो रही है because the wavelength is extremely small, so we are talking about a high frequency. So high frequency radiation जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास ऑन हो जाती है. So if they are able to pass on from the अर्थ एटमॉस्फेयर तो फिर वो सिर्फ सैटेलाइट से ही रिफ्लेक्ट हो सकती है. जहाँ तक हम बात करेंगे ऑप्टिकल या रेडियो टेलीस्कोप्स की तो वो ग्राउंड पे बनाए जा सकते हैं बिकॉज ऑफ द सेम रीजन दैट दे विल बी हैविंग द lower frequency. They will be having a lower frequency range. The small ozone layer on the top of the stratosphere is crucial for the human survival. Reason because the ozone layer the harmful blocks harmful UV rays. और UV rays जो होती हैं जो अगर हमारे पास पहुंचे तो they can actually cause a lot of genetical disorders. So ozone layer basically prevents that for the human survival. तो हो सकता है हमारा genetic इतना imbalance हो जाए that the survival is not even possible. E part, it says if the earth did not have any atmosphere would its average surface temperature be higher or lower? So अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा, which mean there will be no greenhouse effect. So अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो इसका मतलब कि जो वार्मथ है जो हमारे एटमॉस्फेयर जो हमें सरफेस को प्रोवाइड करता है अर्थ के सरफेस को वो गायब हो जाएगी. इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो लोअर साइड पे चला जाएगा. सो वील हैव द टेम्परेचर कमिंग टू द लोअर साइड. Now the F part of it, it says some scientists have predicted that a global nuclear war on the earth would be followed by a severe nuclear winter with a devastating effect on the life on the earth. What might be the basis of this particular prediction? Now see, सबसे पहले जो होल स्टोरी है ओरिजिन क्या है कि सन से हमें रेडिएशन आती है और उसके बाद में कुछ पार्ट जो है वो एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो जाता है लाइक यूवी रेस जिसको हमने ओजोन लेयर के फॉर्म में पढ़ा, बाकी अर्थ के सरफेस पे पहुंचता है और फिर लैंड्स एंड ओशियंस उसको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर कुछ पार्ट उसका जो रिफ्लेक्ट होता है वो भी सारा का सारा जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से एस्केप नहीं कर पाता है, कुछ पार्ट वहीं पे ट्रैप हो जाता है जिसकी वजह से अर्थ का सरफेस जो है वो वार्मथ क्रिएट करता है और एक टेम्परेचर जो कि हमारे लिए सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है वो मेंटेन हो पाता है. यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अगर कोई न्यूक्लियर वॉर ऐसी हो जाती है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूज हो जाते हैं तो उससे क्या होगा कि स्मोक एंड डस्ट बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाएगी और बिकॉज स्मोक एंड डस्ट बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाएगी तो उसकी वजह से
जो सोलर रेडिएशन है वो हमारे तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। और अगर सोलर रेडिएशन हमारे तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम इज गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द स्मोक एंड डस्ट। और अगर ऐसा हो जाता है, so because of which the average temperature on the earth is going to fall drastically, और तभी हम उसको क्या बोलेंगे, एज अ न्यूक्लियर विंटर। सो वी मस्ट ऑल ट्राई टू प्रिजर्व एंड prevent this idea. So the nuclear winter basically explains that because of the absence of the solar radiations due to smoke and dust, the average temperature on the earth falls. So that's all for the today's session. आज के सेशन में we talked about a very beautiful article about electromagnetic wave spectrum, और हमने देखा कि किस तरीके से कुछ नेचुरल स्टडी भी है, लाइक ओजोन लेयर, जो कि नेचुरली हमारे को एक प्रोटेक्टिव लेयर गिवन है। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द यूजेस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, like how to kill the cancer cells by using the gamma radiations and all, and how to have our scans of the body using the x-rays, and we can use the physiotherapy, and for the cooking food, like we can use the microwaves, and physiotherapy we can use the IR. So that's all we have understood in this particular article, the uses of the different parts of the electromagnetic wave spectrum. Thanks for watching.